don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta Cause I struggle don't through give the a fuck sewer. what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. स्वागत है तुम्हारा नए एपिसोड में। आज था हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट एंड वर्कआउट कर लिया है सुबह ही जाके एंड अभी मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ फिर से। वर्कआउट की बात करें तो चेस्ट मेरा एक वीक मसल ग्रुप है। मेरे को पता है, मतलब जब से मैंने इनिशियली स्टार्ट किया ट्रेन करना तो चेस्ट को लेके मसल माइंड कनेक्शन मेरा नहीं बनता था, तो उस चक्कर में भी शायद उतनी ग्रोथ नहीं हुई है। मैंने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किया है ये इसको मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने में। अभी रिसेंटली 1 साल 1.5 साल से मुझे फील होनी शुरू हुई है चेस्ट। मेनली मैंने नोटिस किया फ्लाई मूवमेंट्स पे होती थी, बट प्रेसिंग मूवमेंट्स में मैंने कभी चेस्ट फील ही नहीं करी। शायद उसकी वजह से अब मैं धीरे धीरे मतलब मसल माइंड कनेक्शन बढ़ने लगा है, तो हो सकता हो कि अब मेरी चेस्ट में इम्प्रूवमेंट्स आएँ। काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स दिखी हैं अभी तक तो। आज का पंप भी बहुत प्यारा आया था। तो मैं सोच के गया था भाई कि एकदम आज फाड़ देंगे वर्कआउट, एकदम ऑल इन जाना है। और बहुत ही अच्छा पंप आया, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही अच्छा माइंडसेट था एंड आज फिज़िक काफ़ी बढ़िया लग रही थी पंप के बाद। मुझे क्या लगता है मतलब मेरा वर्क एथिक धीरे धीरे पे ऑफ कर रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। वो सब जो मील्स बनाना मन नहीं करता फिर भी बनाना, वर्कआउट करना मन करे ना करे, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे शो हो रही हैं रिज़ल्ट्स में। प्रोसेस तो देखता नहीं है कोई, रिज़ल्ट ही देखते हैं तो बताना पड़ता है कि भाई ऐसे इजी नहीं है। मेरा माइंडसेट यही रहता है। 3 एक्सरसाइज करता हूँ चेस्ट में, एक तो इंक्लाइंड चेस्ट प्रेस, एक केबल फ्लाइज बेंच पे कर रहा हूँ आजकल लोअर चेस्ट के लिए, एंड एक चेस्ट प्रेस की मशीन पे, फिर 2 ट्राइसेप का मूवमेंट पुश डाउन और एक ओवरहेड कोई भी। माइंडसेट वही रहता है कि भाई हर सेट में ऑल आउट जाना है एकदम, जब तक एकदम एक रेप नहीं निकल रहा और तब तक करना है।
तुम अगर ट्रेन हार्ड नहीं कर रहे हो भाई तो कोई फ़ायदा नहीं है जिम जाने का। वार्म अप तो करना नहीं है। बहुत लोग यही करते हैं, जाते हैं वार्म अप करके आ जाते हैं। भाई तुम्हें ऑल आउट जाना है, इंटेंसिटी बढ़ाओ अपने वर्कआउट्स की, तभी तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड इसके अलावा आई वांटेड टू टॉक अबाउट माय डिप्रेशन। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि कुछ सालों पहले आई वेंट थ्रू दैट फेज़ जहाँ मैं डिप्रेस था। सो फर्स्ट थिंग, मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं डिप्रेशन इस वजह से होता है कि या तो कोई मतलब हैपनिंग हो गई उस वजह से, या फिर कुछ ऐसे पर्पसलेस हो, काम धाम नहीं है तो उस वजह से हो जाता है, और कोई रीज़न नहीं है। एंड सबसे पहली चीज़, डिप्रेशन सैडनेस नहीं होती भाई। सैडनेस टोटली डिफरेंट चीज़ है, डिप्रेशन एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। डिप्रेशन में तुम्हारा पूरा डोपामीन सेरोटोनिन सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, जो केमिकल सिस्टम होता है माइंड का, तुम अच्छा फील नहीं कर पाते हो। सो मेरे को लगता है जैसे मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि जब हमें पर्पस नहीं होता है तब ये सब चीज़ें होती हैं, वरना अगर तुम पर्पस हो, तुम जिम जाओ रेगुलरली, तुम अपने आप पे काम करो तो सब सही रहेगा। बट भाई 2021 से 22 में 21 के एंड से होना स्टार्ट हुआ था, नहीं 2022 के एंड से होना स्टार्ट हुआ था भाई। उस टाइम मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। मैं अपनी पीक हैप्पीनेस में था भाई। देखो मैं कैसा दिखता था, मेरे बाल बड़े बड़े थे, और आई थिंक वो कुछ पहले से ही मुझे हल्की फुल्की एंग्जाइटी होने लगी थी जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। एंड कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी भी हुई जिसकी वजह से वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करी और मैं और डिप्रेशन की तरफ बढ़ता गया। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि भाई कि मैं पर्पसलेस था इस वजह से हो गया। भाई अपने आप पे काम कर रहा था, जिम जा रहा था, फिजिक बन गई थी, और उस टाइम मतलब जो था पीक हैप्पीनेस जो होती है वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था उस टाइम की। मतलब अपनी लाइफ में मैंने पहली बार इतना कनेक्टेड फील किया था खुद से कि हाँ भाई ये कुछ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में मुझे हो गया भाई। तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन कुछ ही लोगों को होता है भाई, किसी को भी हो सकता है। तुम दुनिया में सबसे खुश आदमी हो तब भी उसके बाद भी तुम्हें हो सकता है। सो ओवरकम कैसे किया मैंने, पहले तो मतलब मेरे को भी नहीं आइडिया था कि मुझे डिप्रेशन है, ऐसा होता है डिप्रेशन, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम करता था। फिर एक पॉइंट जब आया कि मतलब सुसाइडल हो गया मैं, मतलब वो थॉट इनिशिएट होने लग गया कि लाइफ में है ही क्या, ख़त्म कर लेते हैं। तो दवा ववा चली, लेकिन डायरेक्ट डिप्रेशन की दवा नहीं थी। वो मेरा बीपी हाई हुआ था, इसकी वजह से फिर लो हुआ था, तो उस समय दवा चली थी। एग्जैक्ट डिप्रेशन की दवा नहीं थी। फिर मैं ये हमज़ा अहमद करके एक यूट्यूब चैनल है, उसका चैनल देखा था, कुछ मेंटल हेल्थ गाइड करके उसका यूट्यूब वीडियो आया था उस टाइम। फुल डिप्रेशन करी ऐसे कुछ था, 1-2 घंटे का था। तो मैंने देखी उसे, उसमें कुछ चीज़ें उसने बताई थी तो मैंने अप्लाई करी। पहली चीज़ तो जैसे मैं तुम्हें बताया, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, एक सेल्फ हेल्प बुक रीड करना, फिर एक हैबिट ट्रैकर भी बनाना, सारे हैबिट्स लिख के उसको टिक करना, भले तुम कितना भी मतलब बेयर मिनिमम ही क्यों ना कर रहे हो, और थोड़ा सा बाहर निकलना, एक्सपोर्ट करना, वो सब चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। एंड धीरे धीरे एक पॉइंट आया कि मतलब अचानक से ही मैं सही हो गया। लेकिन उसके लिए भाई तुम्हें कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, वो विल होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर विल थी, वो भले मुझे चारों तरफ अंधेरा दिखता था, लेकिन वो एक अंदर से विल थी कि हाँ भाई सब सही हो जाएगा, सब सही। इवन तो मैं सुसाइडल हो रहा था तब भी हाँ भाई सब सही हो जाएगा एक दिन। वो धीरे धीरे होप जा रही थी, लेकिन वो एक विल थी अंदर से। और आई डोंट नो मेरा क्या माइंडसेट था क्या नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाता था। मैं 16 घंटे सोता था डिप्रेशन में, जब डिप्रेशन वाला फेस था 16 घंटे सोता था। मेरा दिन का रूटीन था, मैं उठता था, नाश्ता किया, फिर सो गया, दोपहर में उठा, खाना खाया, फिर सो गया, शाम में मुझे समझ नहीं, अभी भी मैं प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ मैं अपने को जिम कैसे घसीट के ले जाता था, क्योंकि इतनी नींद आती थी और बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता था। अंधेरे से प्यार हो गया था, जैसे तैसे भाई जिम ज़रूर जाता था घसीट के, फिर सो जाता था। ऐसे ही मेरा दिन चलता रहता था। एंड आई डोंट, अभी भी मैं प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ कि मैं जिम कैसे अपने आप को ले जाता, क्योंकि मेरे से और कोई काम ही नहीं होता ना। मैं पढ़ाई कर पाता था, इवन मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता था, फिर भी मैं अपने आप को जिम ज़रूर ले जाता था। पता नहीं कैसे वो चलता था मेरा माइंड, वो मेरी प्रोग्रामिंग ही ऐसी थी, मेरा प्यार था इस चीज़ के लिए, वो चीज़ हमेशा अपनी तरफ मुझे खींची ही है। सो यही सब चीज़ें थी, जिम, रीडिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, थोड़ी सी सनलाइट, थोड़ा सा टहलना वहलना, इन सब चीज़ों ने मेरे को काफ़ी ओवर टाइम इम्प्रूव करने में हेल्प करी थी मेरी मेंटल हेल्थ। एंड अगर भाई तुम सफ़र कर रहे हो इस चीज़ से, तो यस भाई तुम्हें पर्पस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर पर्पसलेस हो तो भाई और ज़्यादा ये सब चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट
ने बहुत टाइम मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम्हारा पर्पस है तो तुम डिप्रेस नहीं हो सकते भाई, होता है, ये डिप्रेशन में बीमारी है। और मेरे केस में तो ये थोड़ा सा जेनेटिक भी है, मेरी मम्मी की साइड के लोगों को है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ भी मेरे ऊपर अप्लाई हो गई। बट आई एम ग्रेटफुल कि मेरा वो माइंडसेट है, मेरी वो विल थी कि जो मुझे इस चीज़ से बाहर ले आई, वरना मैं भाई बहुत डूब गया था उसके अंदर, ऑलमोस्ट सुसाइडल था। एक पॉइंट और होता तो शायद मैं लटकने को भी तैयार हो जाता। सो आई एम ग्रेटफुल कि भाई मैं वहाँ से निकल पाया, और यही थी मेरी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बल्क जो भी है। सिचुएशन पर्सनल लाइफ थोड़ी ख़राब है, लेकिन मैनेज कर रहे हैं क्योंकि भाई लाइफ तो चलनी ही चलनी है, गिव अप तो नहीं कर सकते। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।